Hello everyone, I'm Ruchi Rathod and I welcome all of you on my YouTube channel. Okay, so today our topic is electronics. Today I'm going to discuss with you all with some numericals which was asked in CSIR NET and GATE examination. Okay, so before starting with the numerical, first I request all of you, those who are new on my channel or those who have not subscribed it, please subscribe my channel and click on the bell icon to get latest notification of my all upcoming videos. Okay, so let's start with the today's question. So the first question that I'm going to discuss with you all, that is the question which was asked in CSIR NET December 2012. Okay, and the question is, see, the logic circuit shown in the figure below. Here we have one logic circuit which is given to us. Okay, in this what we have to do is implement the Boolean expression. दैट मीन्स वॉट, हेयर एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्लियर, एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई वॉट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग, ठीक है. एंड फॉर दिस वी हैव 4 ऑप्शंस विच इज गिवन टू अस, दैट इज ऑप्शन A, B, C and D. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव टू चेक विच वन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Okay, so always see, whenever you have this kind of numerical, first you have to remember the laws. Okay, that is laws क्या होता है, that and laws or law about this. Okay, if you remember the laws, easily you can solve this kind of numerical. Okay, so let's start with this. So always if you have such kind of questions, so go one by one. That means by one gate to one gate. That is, if you see this logic circuit, okay, here we have 3 gates. 2 is XOR gate, this is a symbol of XOR gate, and one we have OR gate. Okay, so this we have to do. So first we will solve by first gate. So if you see this first gate of XOR gate, here one input is high, that is 1, and the other input is A. Okay, so here we have 2 input A and 1. So output I can write is A XOR 1. Okay, if you see the second gate, in the second gate we have one input is high, that is 1, and other is B. So output of this XOR gate I can write 1 XOR B. Okay, clear. So we have got this output for first XOR gate, this output for this XOR gate. Now we have to solve this OR gate. Okay, so as you can see, output of this first XOR gate, it is connected with the input of, that is first input of this OR gate. So whatever you are getting here output, it will becomes input for this, as because of the similar connection. यहाँ का connection इससे connected है, तो जो भी यहाँ पे रहेगा वो इनके input में चला जाएगा. Same you can see here also. ठीक है. So now OR gate having 2 input, one is this and the another is this. So OR gate we are representing by प्लस. इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, इसमें जब वेरिएबल्स को आप टुगेदर लिखते हो तो वहाँ पे जो साइन आता है वो कौन सा आता है, प्लस का साइन आता है, विच इज़ रिप्रेजेंट द OR gate. So we will write the first input this, that is y we will write as A XOR 1, okay, and plus, that is OR gate का sign, and then the second input, that is 1 XOR B, this we will write. Okay, so this y we have got. But if you see your options, that is A, B and C, D, it is not same that we have got. So what we have to do, we have to simplify this output whatever we have got to get our answer. Okay, so now we will simplify this. Clear? So see here, first I have written the y as it is here, whatever we have got. Now XOR gate, I can write, see, if we have for example A XOR B, इसको हम कैसा लिखते हैं, we are writing this as A bar B plus A B bar. Okay, like this. So in the similar manner we will do for this also, that is this, and the second term also. So जब first को लिखोगे तो क्या होगा, first का complement, second as it is with the dot sign, okay, and then first without complement dot, the second complement and plus. ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड द सेकेंड वन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं इन द सिमिलर मैनर.
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सऑर का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लियर है? नाउ वी विल पुट सम लॉज हियर। क्लियर है? सो here first term we will write as it is, here the last term we will write as it is, but at these two place we can apply the laws. See how? Here a dot 1 bar, so how I can write this? A dot 1 bar, that is 0. It is the AND, ये क्या, dot means AND, so here we have to use the AND law. Okay, and AND law says that if we have any input as 0, अगर एक भी input 0 होता है तो the output of AND gate becomes low. अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट जो होता है वो AND गेट का क्या हो जाता है? लो हो जाता है, दैट इज़ लॉजिकल 0. अगर आपको ट्रूथ टेबल भी अच्छे से पता है, लॉज के बारे में अगर आपको पूरे लॉज अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, तो सिंपली आप ट्रूथ टेबल का दैट इज़ उसका जो रूल्स होता है वो अप्लाई करके भी आप कर सकते हो, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है लॉज को. ठीक है, सो हियर वी विल गेट 0. सिमिलर थिंग यू कैन सी हियर 1 bar dot b, so one complement, that is 0 dot b. Okay, 0 dot b, if we see about the AND laws, 0 dot b, that is if any one of the input is low we will get output as low. Okay, so these two terms I will write as 0. So here we have a bar dot 1 and 1 dot bar 1 dot b bar. Okay, now we have to simplify again. If we are applying the दैट इज़ एंड लॉ हियर, ए बार डॉट 1 की जगह पे एंड लॉ अप्लाई करोगे. ठीक है, अगर आपको लॉज नहीं आता तो आप ऐसा सिंपली इसके रूल्स अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा. तो इसके जगह हमको क्या मिलता है? ए बार, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बी बार. ठीक है, तो अब अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट जो है अगर होल को करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होल को मतलब सिर्फ इसको सबको अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर रखोगे तो कैसे हो जाएगा? ये ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर है ही, बट अगर ये प्लस भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, सो इंस्टेड ऑफ प्लस वी विल गेट डॉट, दैट इज़ ये जो और का सिंबल था वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए लॉजिक गेट्स के. ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस आंसर, दैट इज़ a dot b the whole bar. Now we will see our option. So if you check the option a dot b the whole bar, from this all 4 options, so we can see that only option A, it is showing a dot b bar, that means our option number A is correct. Okay, so I hope you have understood this numerical how we have to solve. Simply गेट दिया, एक एक गेट का सॉल्व करो, y जो भी मिलता है उसको सिंप्लीफाई कर दो, you will get your answer. Only the thing that you have to do is you have to remember the laws. आप कैसे रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको सिंपली ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. सो हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन गेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? इन द गिवन डिजिटल लॉजिक सर्किट ए बी फॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट इज वाई. ए और बी इनपुट दिया है और आउटपुट क्या दिया है हमको? वाई दिया. यहाँ पे भी सेम थिंग करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टू गेट द आउटपुट. क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो, पहले जैसे कि मैंने बताया गेट बाय गेट जाओ. ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए सिंपल कर देता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं आपके लिए. आप हमेशा ऐसे ही करो. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए जो इनपुट है ये गेट, ये एक और गेट है, ये एक और गेट है और ये एक नैंड गेट है. ठीक है, और यहाँ पे एक नॉट गेट कनेक्टेड है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो हियर ए जो इनपुट है ये पहले नॉट गेट पे जा रहा है. ठीक है, तो नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा. ठीक है, और ये जो ए बार है ये और गेट के फर्स्ट इनपुट में जा रहा है. ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे. और गेट के सेकेंड इनपुट में क्या जा रहा है? बी. तो और गेट को 2 इनपुट मिलता है, एक ए बार एंड बी. तो और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो और गेट है इसमें एक इनपुट क्या है? बी है, और दूसरा इनपुट क्या है? ए है. ठीक है, कनेक्शन यहाँ से आ रहा है ना, तो मतलब ए इसके सेकेंड में जा रहा है और बी इसके फर्स्ट. तो इसके पास जो 2 इनपुट है वो ए एंड बी है. ठीक है, ये वाले गेट के पास. तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? देखो, पहला इनपुट क्या है? बी, तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस ए. ठीक है, अब देखो, अब बिकॉज इसका आउटपुट जो है वो कनेक्टेड है इसके फर्स्ट इनपुट से, इसका आउटपुट कनेक्टेड है इसके सेकेंड इनपुट से. तो नैंड गेट के पास 2 इनपुट है, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है.
क्लियर है। तो y क्या मिलेगा हमको, मतलब इसका आउटपुट क्या होता है। नैंड गेट में वी आर जो भी टर्म्स होते हैं दैट इज़ जो वेरिएबल्स है उसको कैसे ऐड करते हो, बाय डॉट एंड ओवर द होल कॉम्प्लीमेंट, ये नैंड गेट में करते हैं हम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्या मिला है हमको, a बार प्लस b लिख दिया, ठीक है। और जो सेकेंड मिला है वो क्या है, b प्लस a मिला है। दोनों के बीच क्या आएगा, डॉट आएगा। और होल बार मतलब ये दोनों को होल बार है, ठीक है। कैसे है देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में। पहला क्या है, a बार प्लस b यहाँ पे है, एंड देन b प्लस a, और ये नैंड गेट के वजह से क्या आएगा, डॉट एंड द होल बार, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने आंसर के लिए, बिकॉज ये डायरेक्टली हमको ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So to get the simplification of this, first what we am going to do is I will remove the bracket, ठीक है। ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। So how you will get, first a bar to both the term, then we will multiply b to both the term. So a bar मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a bar b plus a bar a, that is this, and if we multiply b to this term, what we will get, b into b then b into a, that is this. So after multiplying this bracket we will get दिस, क्लियर है। सो अब क्या करोगे, यहाँ पे वी विल पुट सम लॉस अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई हो सकता है, अभी आप देखो यहाँ पे a बार डॉट a है, और एंड लॉ क्या करता है, अगर हमारे पास a बार डॉट a है, चलो इसको हम ऐसे भी देख सकते, a बार डॉट a, समझो a का वैल्यू हमने ले लिया 0 ले लिया, तो अगर a का वैल्यू 0 ले रहे हो तो यहाँ पे तो a 0 है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 0 डालोगे, बट 0 कॉम्प्लीमेंट इट विल बी 1, और एंड में क्या है, अगर एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमको, 0। अब b डॉट b है, दोनों इनपुट सेम, तो वही आंसर मिलता है। अब देखो कैसे, b डॉट b मतलब अगर हमारे पास दोनों 1 1 है तो आंसर क्या मिलेगा, 1 एंड गेट में। अगर हमारे पास दोनों 0 0 है तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। ये किस में मिल रहा है, एंड गेट में। तो बेसिकली व्हाट वी कैन सी, जो भी यहाँ पे ले रहे हो वही मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो b का वैल्यू ले रहे हो वही मिला, तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं b विच इज़ इक्वल्स टू b, जो लोगे वही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे b। ऐसे आपको लॉज याद रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर याद रखोगे आप लॉस को सब्सटीट्यूट करते टाइम कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा। सो हियर फॉर दिस वी हैव गॉट 0, फॉर दिस वी हैव गॉट b, तो ये टर्म एज इट इज़ लिखा, लास्ट टर्म एज इट इज़, एंड हियर 0 एंड हियर b वी विल राइट एज इट इज। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, सी in 3 terms, here we have 3 terms and all 3 terms we have b as a common, so b को हम common ले सकते हैं, सब में b है ना, b we can take out common, so here we'll get a bar inside, here 1 and here a, that is the inside we will get. Now we know that a bar plus a due to the OR law, ठीक है। OR law में क्या होता है, अगर हमारे पास a bar plus a है, ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन है तो OR लॉ क्या देता है, 1, ठीक है। ये ड्यू टू OR लॉ, सिमिलर जैसे हमने एंड में अप्लाई किया ना, वैल्यूज़ 0 1 दे के, आप वैसा दे के भी चेक कर सकते हो, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड ऑलरेडी एक 1 था तो ऐसा हो जाएगा, और b एज इट इज़ लिखा है, एंड ओवर द होल कॉम्प्लीमेंट याद रखो वो हम अभी तक एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। अब 1 + 1, ठीक है, और गेट में क्या होता है, 1 + 1 1 होता है, ये इसका ट्रूथ टेबल याद रखो सिंपली, ठीक है। तो 1 + 1 1 हो गया, ठीक है। b डॉट 1 विल बी व्हाट, b, एंड ओवर द होल कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था तो b का बार हो जाएगा। सो आउटपुट वी आर गेटिंग b कॉम्प्लीमेंट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी, बी सी हियर ऑप्शंस A, B, C and D. So only D option which is showing the B bars. That means option number D is correct. Okay. So ये बहुत ही simple question था. I hope you all have understood how to solve this question. Okay. So now we will proceed with our third question. ठीक है. हम बिना time waste किए अपने तीनों question को यहाँ solve कर देते हैं. आज एक वीडियो में हमने 3 questions लिए हैं. ठीक है. 2 already we have done. Now the third one, that is last one, we will do. ठीक है. So now this question it was asked in 2007, that is GATE 2007 में आया हुआ question है जो कि हम solve करेंगे. ठीक है. So here the question is identify the function f generated by the logic network shown.
हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो f है ये फाइंड आउट करना है जो भी ये सर्किट से हमको मिल रहा है, दैट मीन्स इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, जो अभी तक दोनों क्वेश्चंस में किया सेम वी हैव टू डू हियर ऑल्सो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ पे जो आउटपुट है उसकी जगह पे क्या दिया है, y, हमेशा y देते हैं ना, यहाँ पे f दिया है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम जाओ, तो जेड वाई, ये गेट को पहले दो इनपुट जा रहे हैं, कौन से, जेड वाई, ये कौन सा गेट है, एंड गेट, तो इसको कैसे लिखोगे, जेड डॉट वाई। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट में, मतलब ये एंड गेट का एक इनपुट क्या हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक नॉट गेट है, इसको इनपुट क्या आ रहा है, वाई, और नॉट गेट का आउटपुट वाई बार। तो वाई बार जो है ये और गेट के फर्स्ट इनपुट को जा रहा है, और वाई गेट और के सेकेंड इनपुट को एक्स जा रहा है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई बार डॉट, सॉरी ये और है ना, तो बीच में डॉट की जगह डॉट नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, एंड है तो डॉट आता है, और है तो प्लस। तो आई होप यहाँ समझ में आओगे। मैंने थोड़ा फास्ट लिया बिकॉज ऑलरेडी दो न्यूमेरिकल्स थे जिसमें मैंने आपको डिटेल वाइज समझा, ठीक है, बट स्टिल डाउट है तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमको जो इनपुट y मिला था, ये नॉट पे, वो आउटपुट y बार हो जाएगा जो कि इसके इनपुट में जाएगा। तो y बार एक इनपुट है, दूसरा इनपुट क्या है, x है, और ये एस और गेट है तो बीच में साइन क्या आएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या मिला है, जेड वाई ड्यू टू एंड गेट। ठीक है, अब ये एंड गेट को एक इनपुट ये है और दूसरा इनपुट ये क्यों है, बिकॉज इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट में जा रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये एंड गेट ही है, तो फर्स्ट ये डॉट द सेकेंड टर्म, दैट इज़ आप देख सकते हो जो हमें एफ दैट इज़ मिल रहा है वो ये है। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट आवर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट को रिमूव करो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये जेड वाई पहले वाई बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन जेड वाई एक्स के साथ। तो यहाँ पे देखो आप, जब जेड वाई को आप वाई के साथ करोगे तो ये मिलेगा वाई बार के साथ, एंड जेड वाई को एक्स के करोगे तो ये मिलेगा। अब वी नो दैट y इंटू वाई कॉम्प्लीट अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है ज़ीरो। अभी फर्स्ट और सेकंड में यही हम लोग ने देखा। ठीक है, ड्यू टू एंड लॉ इसका जो आंसर होगा, वैल्यू होगा, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जेड वाई एक्स, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ यहाँ पे ये मिल रहा है। तो अपना आंसर, इसको हम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो अपना जो एफ़ का आंसर मिल रहा है वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो एक्स वाई जेड मतलब कौन सा ऑप्शन, ए तो शो नहीं कर रहा है, बी शो नहीं कर रहा है, सी शो नहीं कर, बट डी जो है वो एक्स वाई जेड शो कर रहा है, दैट इज़ आवर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो आई होप आपको ये ऑल थ्री क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो तीनों क्वेश्चंस थे वो लॉस पे बेस्ड थे, इसके लिए आपको उसका ट्रूथ टेबल जो है एवरी गेट का वो अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ यू वांट द वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, डेफिनेटली आई विल मेक। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।